सो न्यूक्लियर फोर्सेस को हम लेते हैं कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो उसको हम बोलते हैं दैट्स अ न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांगली हाईली अट्रैक्टिव फोर्स है एंड शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज शॉर्ट रेंज है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स 10 फर्मी से ज्यादा हो जाए तो ये फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है। Normally attractive लेते हैं, but if distance becomes less than 0.8 Fermi, then it becomes highly repulsive also. सारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल फोर्सेस से डिफरेंट है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, सैचुरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, स्पिन डिपेंडेंट है। नॉर्मली हमने कोई फोर्स अभी तक स्पिन डिपेंडेंट नहीं पढ़ी थी कि दो न्यूक्लियॉन्स की लाइक स्पिन है तो फोर्स कुछ और होगी, अनलाइक है तो कुछ और होगी। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है हमने सारी, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो कावा ने कैसे एक्सप्लेन की थी। सो कैन राइट, पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, वो साथ साथ एक्सप्लेन करता दूंगा मैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, nuclear forces are strong forces of attraction. Nuclear forces are strong forces of attraction which binds the nucleons together. Nucleons के साथ ब्रैकेट में लिख लेना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, which binds the nucleons ब्रैकेट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सर एक बार रिपीट कर दो, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ strong attractive forces which binds the nucleons together which binds the nucleons together although there exist strong electrostatic force of repulsion so although there exist strong electrostatic force of repulsion between protons. सही पर आपने दे एग्जिस्ट के बाद क्या बोला था? ऑल्दो दे एग्जिस्ट Strong electrostatic force of repulsion between protons. सर एक बार रिपीट कर सकते हो, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ऑल्दो दे There exists strong electrostatic force of repulsion between protons. There exists strong electrostatic force of repulsion between protons. The important characteristics. Important characteristics of nuclear forces are. Important characteristics of nuclear forces are. First is it is charge independent force. चार्ज इंडिपेंडेंट का फोर्स का मतलब है कि जो बिकॉज प्रोटॉन चार्ज और न्यूट्रॉन अनचार्ज है, बट ये फोर्स सेम ही होती है। दो प्रोटॉन्स में जो फोर्स है वही दो न्यूट्रॉन्स में होगी, वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होगी। दैट इज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन is same for proton proton, proton neutron, और neutron neutron.
So that's why we say that it's a charge independent force. It is a charge independent force. Next. It is the strongest force in nature. It is the strongest force in nature. And it is about 100 times stronger as compared to electromagnetic force and 10 raised to power 38 times stronger as compared to gravitational force. सही बार रिपीट कर दो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन As compared to electromagnetic force and 10 raised to power 38 times stronger as compared to gravitational force. So Fn by Fe is 100, Fn by Fg is 10 raised to power 38. As this force is much stronger than electrostatic repulsive force, it provides stability to the nucleus. So as this force is stronger as compared to electrostatic repulsive force, it provides stability to the nucleus. Next to write. It is a short range force. It is a short range force. And the nuclear force becomes negligible. It is a short range force. And the nuclear force becomes negligible if distance between nucleons is more than 10 Fermi. And this force becomes negligible if distance between nucleons is more than 10 Fermi. That is, we can assume that. This force exists only inside the nucleus. This force exists only inside the nucleus. Next. This force becomes repulsive. This force becomes repulsive if distance between nucleons is less than 0.8 Fermi. So this force becomes repulsive distance between the nucleons is Becomes less than 0.8 Fermi. साथ में ग्राफ बना सकते हो. और ये 10 Fermi तक जाते जाते this becomes negligibly small. अगर मैं corresponding potential energy का ग्राफ बनाऊंगा, पॉइंट 8 Fermi से डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी. R is distance between nucleons. excuse me sir. Distance between interacting nucleons.
ये सिमिलर ग्राफ आपने 11th में भी बनाए थे स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में। सर न्यूक्लियर फोर्स के बेसिकली होती क्या है सर? मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। क्वेश्चन नहीं सुना मेरे को आपका, माइक ठीक करो। सर मैं कह रहा था कि न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है बेसिकली? होती क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। आज तक हमें तो ये भी नहीं पता ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, सिर्फ ये पता है दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्यों करते हैं ये थोड़ी पता है। हम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था तब भी मैंने बताया था, हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। तो हम क्यों नहीं आज तक फाइंड कर पाए। तो ऐसे न्यूक्लियर फोर्सेस भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती हैं। फोर्स पता है, फोर्स की प्रॉपर्टीज पता है, पर ये फोर्स क्यों होती है ये नहीं पता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर प्रैक्टिकली हो सकती है रिपल्सर? प्रैक्टिकली ये रिपल्सर हो सकती है? ये प्रैक्टिकल रिजल्ट ही लिखा है मैंने आपको, ये थ्योरेटिकल नहीं है। बिकॉज हम तो बहुत अंदर जा चुके हैं। ये तो न्यूक्लियस की बात होगी, हमने तो ये भी देख लिया प्रोटॉन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, उसके अंदर हमने क्वार्क्स ढूंढे, क्वार्क्स के अंदर क्या है वो भी ढूंढ लिया। तो ये तो बहुत बेसिक वाली फिजिक्स है अभी। सर लेकिन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही जैसे 1.2 फर्मी से ज्यादा है, तो फिर 0.8 फर्मी तो कभी डिस्टेंस कैसे होगा? क्या चीज? सर जैसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही मिनिमम 1.2 फर्मी है, तो ये फिर तो न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस के बाहर लेके जाना है। ये तो न्यूक्लियस के अंदर तो डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। आप मेरे को कह रहे हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है कुछ, आप कुछ भी इसकी वैल्यू ले लो, इससे कम डिस्टेंस तो हो ही सकता है ना इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें। ये डिस्टेंस जरूरी थोड़ी है आर से ज्यादा ही होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। ये तो न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। और ये जो मैं आपको चीजें लिखा रहा हूँ ये पुरानी फिजिक्स है, पुरानी मतलब 1950s की। आजकल तो इसको बहुत बेसिक माना जाता है, इसके लिए तो बहुत छोटे छोटे एक्सेलरेटर चाहिए होते थे। मतलब ऐसी रिसर्च तो साइक्लोट्रॉन पे भी हो जाती थी। डोंट रिक्वायर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या सुपर कोलाइडर्स नहीं चाहिए होते थे जो आजकल बनते हैं। वो हमें तब चाहिए होते जब हमने ये देखना है कि प्रोटॉन के अंदर क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट राइट, इसी के आगे लिख लो पहले, दिस शोज दैट potential energy is minimum when distance between nucleons is 0.8 Fermi. When distance is 0.8 Fermi, as distance is reduced further due to repulsive force. Because अगर repulsive force होगी तो पास लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करेंगे तो potential energy बढ़ जाएगी। Because if the distance is reduced further due to repulsive force, potential energy will increase. Next, right. It is a spin dependent force. It is a spin dependent force
that is the interactive force between nucleons. That is, interactive force between nucleons will be more if the nucleons have parallel spin and less if they have anti-parallel spin. And less if they have anti-parallel spin. Next. Nuclear forces are saturative in nature. Nuclear forces are saturative in nature, which implies that a given nuclei can interact, which implies that a given nuclei can interact with few of So given nucleus can. a given nucleon can interact with only few of the neighboring nucleons. Few of the neighboring nucleons and not with all the nucleons present inside the nucleus. And not with all the nucleons present inside the nucleus. Next, nuclear forces are non-central forces. Central forces होते थे which acts along line joining and basically distribution of nucleons भी है जो spherically symmetric नहीं होती. So you can write nuclear force is a non-central force. That is, may not always act along. May not always act along line joining the two nucleons. Line joining the two nucleons. Next, it is an exchange interaction. Next, it is an exchange interaction. And pi mesons are exchanged. सर एक्सचेंज क्या होते हैं बिना It is an exchange interaction. सर इसके अंदर आपने पार्टिकल का नाम क्या बोला था Pi mesons. It's an exchange interaction and pi mesons are exchanged between nucleons पाई mesons क्या होते हैं? हाँ जी पैमेजॉन pi mesons particles होते हैं जैसे बाकी particles हैं, ये भी इनका नाम रखा हुआ है meson. On तो हर particle के आगे लगाना ही है. Pi meson is also a particle जो exchange होते हैं, जैसे gravitons होते हैं gravitational interaction में, photons होते हैं electromagnetic में. इसमें जो particle exchange होते हैं वो pi meson होते हैं. They can be positive, negative as well as neutral.
So you can write pi mesons are exchanged whenever nucleons interact. Pi meson can be positive, negative, or neutral. Pi mesons can be positive, negative, or neutral. Next paragraph में लिखा according to Yukawa's theory. According to Yukawa's theory, all nucleons consist of a central core surrounded by cloud of pi mesons. Central core surrounded by pi mesons. Cloud of pi mesons. The difference in proton and neutron between proton and neutron is composition of the meson cloud. The proton and neutron continuously exchange their nature by absorbing and emitting pi mesons. By absorbing and emitting pi mesons. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास एक प्रोटॉन है, वैसे जो कंपोजिशन है इसमें कि वी कैन से कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैन बी प्रोटॉन प्लस नेगेटिव पाई मेसॉन. कि कंपोजिशन में यही फर्क है कि उसके पास एक पाई मेसॉन एक्स्ट्रा है, कि न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन प्लस नेगेटिव पाई मेसॉन, और यू कैन से दैट प्रोटॉन इज न्यूट्रॉन प्लस पॉजिटिव पाई मेसॉन. And they keep on exchanging the particles. मतलब ऐसे हो सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन है अगर, तो इसने अपना पाई मेसॉन इसको दे दिया, इससे पाई मेसॉन वापस ले लिया. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसने अपना पॉजिटिव पाई मेसॉन इसको दिया, इससे न्यूट्रल ले लिया, तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोटॉन बन जाएगा और ये न्यूट्रॉन बन जाएगा. तो अपना नेचर भी एक्सचेंज करते रहते हैं. ये नहीं है कि जो एक बार ही प्रोटॉन है वो हमेशा प्रोटॉन ही रहेगा. जैसे न्यूट्रॉन ने अपना पॉजिटिव पाई मेसॉन इसको एक दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया, तो सॉरी इसको न्यूट्रल दिया और पॉजिटिव लिया, तो ये खुद प्रोटॉन बन जाएगा और इसको न्यूट्रॉन बना देगा. तो वो मतलब होता है कि दे कीप ऑन इंटरचेंजिंग देयर नेचर. तो ऐसे नंबर फिक्स्ड होता है कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स ही होंगे. बट यू कांट मार्क, आप ये नहीं कह सकते न्यूट्रॉन है, बिकॉज थोड़ी देर के बाद हो सकता है वो प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा हो. So वो theory थी युकावा की, they keep on interchanging among themselves, the nature keeps on changing. So you can write this exchange of pi mesons. Excuse me, sir. हाँ जी. तो ये असली में होता है एक्सचेंज की प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हाइपोथेसिस है. कैसे? सर जो आप ये बता रहे हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, ये असली में होता है? हाँ ये असली में होता है. मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल थ्योरीज हैं, ये मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऐसे बोल दिया आपको, ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुकी हैं चीजें. बिकॉज देयर आर डिवाइसेस, मतलब आजकल करते क्या है, अगर आपने इसके अंदर भी देखना है, प्रोटॉन की कॉन्स्टिट्यूशन देखनी है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, तो प्रोटॉन को तोड़ना है तो हाई एनर्जी से उसको कोलाइड करते हैं, फिर स्टडी कि इसमें से क्या क्या निकला, क्या बचा, क्या निकल गया.
उसके लिए दे हैव डिवाइसेस, बबल चैम्बर्स जैसी, जहाँ पे वो चीजों को नोट करेंगे एंड देन दे स्क्रूटनाइज दैट कि पार्टिकल ढूंढना है। जैसे हिग्स बोसॉन को कहते हैं ऑलमोस्ट मिल गया, मिला थोड़ी, ऑलमोस्ट मिल गया। ऑलमोस्ट मिल गया मतलब उनको लग रहा है मिल जाएगा, तो ऑलमोस्ट मिलने पे नोबेल प्राइज मिल गया, अभी एक्चुअल में तो मिला ही नहीं। तो वो ढूंढना शुरू किया, वो उनको लगता है कि हमने काफी जगह ढूंढ लिया, अब थोड़ी सी जगह बची है, मतलब थोड़ा सा डाटा रह गया, तो उसके अंदर मिल ही जाएगा। तो वो भी काम खत्म क्यों नहीं करते देख कर? हाँ, खत्म क्यों नहीं करते मतलब ढूंढा क्यों नहीं? यस सर। हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए देयर आर सम 16,000 साइंटिस्ट्स आर वर्किंग। अब मैं आपको अगर क्लासिकल वे में बताऊं तो ऑलमोस्ट मिलने का मतलब क्या होता है? फिर जैसे आपने मान लो, पूरे स्कूल में ढूंढ लिया, प्रिंसिपल के हाँ ड्रॉर में रह पूरे गया। स्कूल में एक पेन गुम गई थी, तो सारा स्कूल ढूंढ लिया, अब एक पेंसिल बॉक्स बचा है, तो उस वो ढूंढना रह गया, तो उसमें मिल ही जाएगा। तो बस उस पेंसिल बॉक्स में ढूंढ रहे हैं आप। और ये आज से नहीं ढूंढ रहे, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ये बोसॉन्स की जो रिसर्च है स्टार्टेड समवेयर अराउंड आई थिंक 1989 और 90। तो 30 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं ढूंढते ढूंढते। तो अब 2 साल पहले उन्होंने कहा कि अब सब जगह ढूंढ लिया, अब थोड़ी सी जगह बची है। और ये फिजिक्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है जब कोलिजन करनी होती है, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की कोलिजन, फिजिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। वो सारा काम छोड़ के उस पर फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद कोलिजन में डेटा निकलता है। डेटा निकलता है मतलब क्या क्या निकला, वो बहुत सारे, हर पार्टिकल का एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, वो उसके सिग्नेचर होते हैं। मतलब सिग्नेचर मतलब वो एक पार्टिकल है तो उसका एक रेडियस होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो सिग्नेचर से पार्टिकल आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो इमेजेस देख रहे होते हैं, जो उनको सिग्नेचर नजर आते हैं, ट्रैक नजर आता है पार्टिकल का, जैसे एयरफोर्स का एरोप्लेन निकल गया तो पीछे ट्रैक छोड़ जाता है, पार्टिकल जब निकलता है तो उसके पीछे ट्रैक रह जाता है, वो ट्रैक को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो यू कैन से 99.999% टाइम्स तो वो ट्रैक ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ होता है, तो ऑलरेडी वो ऐसा पार्टिकल हमें दिखता है जो ऑलरेडी किसी ने ढूंढा हुआ है। तो हमें वो ढूंढना है जिसके नए सिग्नेचर है। तो वो नए सिग्नेचर को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई नया पार्टिकल मिल जाए। और ऐसा नहीं है, फिजिक्स वाले नए पार्टिकल डिस्कवर नहीं करते इस डाटा से। ऑन एन एवरेज 50 न्यू पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। तो हमने नहीं पढ़े वो, मतलब फिजिक्स की प्रॉब्लम ये है कि आपको भी सिर्फ 4 5 6 पार्टिकल पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, में भी से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और आज एक नया सुन लिया पाइमेजॉन। बट अदरवाइज देयर आर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, दो फैमिलीज हैं बहुत बड़ी, लेप्टॉन फैमिली एंड हेड्रॉन फैमिली। तो आपने हेड्रॉन फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर पढ़े हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेप्टॉन फैमिली में भी 2 ही पढ़े हैं, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। तो अदरवाइज ये बहुत वास्ट फील्ड है एंड इट विल हैव लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं करनी है रिसर्च। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स भी साइंटिस्ट को कई बार फेस करनी पड़ती हैं। कई बार वो चोरी रिसर्च करते हैं बिना गवर्नमेंट को बताए, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा फंड नहीं करेगी आपकी रिसर्च जो मे बी गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसकी फंडिंग भी नहीं होती। तो साइंटिस्ट कई बार अपने पैसे लगा के भी रिसर्च करते हैं। यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या मेडिकल कंपनीज हैं जो सीक्रेट रिसर्च को सपोर्ट करती हैं, खास करके मेडिकल साइंसेज में, जो मे बी इथिकल नहीं है बट वो सपोर्ट करती हैं कि अगर कुछ नया मिल सकता है हमारे को तो। बिकॉज बायो की रिसर्च अभी बेसिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर सब मॉलिक्यूलर लेवल पे चलती है। बट हमेशा फिजिक्स की रिसर्च पहले होती है, फिर जब ये, फिर इसकी एप्लीकेशंस मेडिकल में ढूंढनी शुरू करते हैं हम, कि हमने जो फिजिक्स में रिसर्च कर ली इसको मेडिकल में कैसे अप्लाई करें। आप में से किसी का इंटरेस्ट होगा रिसर्च में तो देख लेना, मतलब पढ़ोगे आगे आप बहुत डिटेल में। बट मेरे को लगता नहीं आप में से कोई ऐसा है जिसको फिजिक्स या बायो या केमिस्ट्री को लेके पैशनेट है कि इसको आगे परस्यू करना चाहता है। आप में से मेजोरिटी लोगों ने या डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, बस यही आपकी साइंस की नॉलेज रह जाएगी। बाकी आपको प्रैक्टिकल बहुत कुछ पता होगा बट लेटेस्ट क्या है वो नहीं पता होगा।
So you can write anyways कहाँ तक लिखा था, लास्ट क्या लिखी थी लाइन? This exchange of pi mesons. The exchange of pi meson between nucleons. The exchange of pi mesons keeps the nucleus bound together. Next is mass defect and binding energy. Mass defect and binding energy. मास डिफेक्ट जैसे कल बताया था कि जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस कोई भी हमने ले लिया से जिसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं, A- Z न्यूट्रॉन्स हैं। तो मेरे पास एक ये न्यूक्लियस था, स्फेरिकल बना रहा हूं बट इट मे नॉट हैव स्फेरिकल शेप। इसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं, A- Z न्यूट्रॉन्स हैं और इसका मास Mn है। तो बेसिकली अगर हम लॉजिकली सोचते तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज सम ऑफ दीज टू मासेस, बट प्रैक्टिकली इनका मास ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है। और रीजन कल क्या बताया था? Mass is converted to energy for making the मास इज nucleus. यूज्ड फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। जिनको बाइंड करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए तो वो मास प्रोवाइड करेगा। तो अगर सिर्फ मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट से डेल्टा है, मास डिफेक्ट को हम कहते हैं इट्स डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा? Z प्रोटॉन्स हैं तो Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, A- Z न्यूट्रॉन्स है तो A- Z। सो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड माइनस इसको हम कह देंगे देयर इज द मास डिफेक्ट। एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? Delta MC square. Delta MC. अगर मैं मासेस को AMUs में लेता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 AMU is how many MeV? 931. 930. 931। तो यू कैन से डेल्टा एम को अगर आप AMU में निकालोगे तो इनटू 931 कर दोगे तो वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब आप न्यूक्लियॉन्स को पास लेके आ रहे हो तो हम ले रहे हैं कि उनको पास लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो उनको बाइंड फिर वो न्यूक्लियर फोर्सेस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनको अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे ले जाएं तो जो एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, कि टू मूव द न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे। अदरवाइज हम कहते हैं कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इस पे बोर्ड में और कंपटीशन पे एक न्यूमेरिकल पक्का है, मतलब 4 नंबर एमसीक्यूज के कि एक न्यूमेरिकल हर साल आता है बाइंडिंग एनर्जी का। कभी नहीं होगा कि बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल नहीं दिया उन्होंने। एंड सिमिलरली बोर्ड में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ही आता है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको सारे मासेस दिए होंगे बट सिर्फ एक्यूरेटली सॉल्व करना है कि आपको ये मास जो है ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक दिया होगा, ये भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक और ये भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक। सो सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इधर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बोर्ड कई बार ही दे देता है बिकॉज ये 931 और 931.5 के बीच में लाई करता है। तो समटाइम्स बोर्ड से यूज 1 AMU is 931 MeV और यू यूज 1 AMU is 931.5 MeV। बट अगर नहीं दिया तो वो दोनों के नंबर दे देते हैं, 931 के भी दे देते हैं, 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो भी दे देते हैं।
So mass defect पहले समझ में आया क्या होता है? It's the difference between mass of nucleons and the mass of nucleus. कि constituent nucleons मतलब जिन nucleon से nucleus बना है उन nucleons का mass minus the mass of nucleus और उसके corresponding जो energy निकलेगी that will be called the binding energy. So you can write mass defect. It was experimentally found that mass of nucleus is it was experimentally found that mass of nucleus is always less than mass of constituent nucleons. Mass of constituent nucleons. Mass of nucleus is less than mass of constituent nucleons. For example, if a nucleus has mass Mn, capital Mn लिखना. For example, if a nucleus for example, mass of nucleus is Mn and it contains Z protons and A minus Z neutrons. And contains Z protons and A minus Z neutrons, then mass of nucleons is in MP is mass of one proton. This mass defect can be defined as this mass defect is difference in mass between constituent nucleons and the nucleus. Difference in mass between constituent nucleons and the nucleus. ZMP plus A minus ZMN minus mass of nucleus. The energy corresponding to mass defect. The energy corresponding to mass defect is called the energy corresponding to mass defect is called binding energy. Is called binding energy.
Theoretically, binding energy of nucleus is the energy with which nucleons are bound in the nucleus. It is measured by the work required to be done. It is measured by the work required to be done to separate the nucleons infinite distance apart work required to be done to separate the nucleons infinite distance apart from the nucleus so that the interaction force between them reduces to zero. Mathematically, binding energy is अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ZME ऐड कर दिया, ZME माइनस कर दिया, बाद में लिख सकता हूँ ऐसे. Yes. ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, मतलब माइनस कॉमन लेके. ये क्या, वो लास्ट टर्म क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी Mass of atom. वो मास ऑफ एटम हो गया. Z प्रोटॉन्स प्लस Z इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं Z को कॉमन लूं तो Mp प्लस Me क्या होता है, mass of nucleus, Mp Mass प्लस of Me, neutron. मास ऑफ Neutron. हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में यही होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. कि न्यूट्रॉन भी होता है, नहीं आता. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, प्लस इस फॉर्म में मैं इसलिए लिखा दूं बिकॉज कई बार वो ना हाइड्रो एटम्स का मास दे देते हैं, एंड दिस इज मास ऑफ एटम इनटू c². समझ में आया क्या किया मैंने?
कि हाइड्रोजन सॉरी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को मैंने हाइड्रोजन एटम का मास लिख दिया और मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम का मास लिख लिया। If masses are in AMUs, and sometimes 931.5 भी वो न्यूमेरिकल में देख लेना दिया है या नहीं दिया। ठीक है यहाँ तक। इसका एक न्यूमेरिकल लिखो, स्कूल लेवल का होगा तो इजी है, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर ना यूज करना इसके न्यूमेरिकल्स में खास करके, नहीं तो वो आदत नहीं पड़ेगी 6 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने की। चाहे 4 न्यूमेरिकल ही करो बट खुद से करना है कैलकुलेशन। So you can write, calculate the binding energy per nucleon of calcium, binding energy per nucleon of calcium if ये वैसे हर न्यूमेरिकल में यही वैल्यूज दी होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो कैल्शियम न्यूक्लियस का जो मास दिया दैट इज 39.962589। तो इसको भी 40 ही ले सकते हैं। नहीं 40 नहीं ले सकते इसको भी। फॉर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है, तो Z भी 20 और A माइनस Z भी 20, मास डिफेक्ट विल बी, अभी तो आपको मैंने आसान वाला दिया बिकॉज 20 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अगर 20 जगह 21 होता तो कैलकुलेशन टफ हो जानी थी। और आपको ये एग्जैक्ट सॉल्व करना होता, अप्रोक्सीमेट लोगे तो हमेशा ही आंसर 0 आएगा। सो डेल्टा एम निकाल लो। होती हैं क्या इनकी वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी, जो एमपी एमएन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो याद हो ही जाएगी, उनसे बाकी न्यूक्लियस की दी होगी। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो मेरे पास जो बुक में आंसर है वो ये दिया है डेल्टा एम का 0.367211 एटॉमिक मास यूनिट। बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम इंटू 931, और हमें कहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 40, बिकॉज आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए नहीं कहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उसको 40 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू चेक करो आ रही है या नहीं आ रही, 367211। सर इसके हाँ अंदर जी। आपने डिवाइड क्यों किया, एक बार ये समझा दो दोबारा।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ये तो 40 न्यूक्लियॉन्स के लिए है ना, तो हमें तो पर न्यूक्लियन बतानी है। पर न्यूक्लियन जब भी निकालनी होगी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा। सर डेल्टा एम आ गया। सर डेल्टा एम यही आ रहा है। ये नहीं है 367211। सर यही आ रहा है, मतलब थोड़ा सा फर्क है सर एंड में, थोड़ा सा। हाँ बट वहां पे थोड़ा सा फर्क भी नहीं चलेगा, इसके आंसर्स बोर्ड बहुत एक्यूरेटली लेता है। सो अदरवाइज बिकॉज अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो हमेशा ही जीरो आएगा, अगर मैं 140 ले लेता तो वो तो जीरो ही आ जाता। तो 367 तक सही है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बिकॉज पहले जब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाला है तो वो ऐड करके आ रहा है 40.3298 करके देख लेना इसको, मतलब बट ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बोर्ड में भी आता है, एमसीक्यूज में तो मैं इसको कहता हूँ लास्ट में करना, बिकॉज टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। कि अगर उन्होंने 20 की जगह कोई और नंबर दिया होता, मान लो से सोडियम है तो 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, तो 17 से मल्टीप्लाई करो, इसमें तो मैं 20 से कॉमन लेके उन दोनों को ऐड करके कर सकता था कि 20 कॉमन आ गया, 1.007825 और 1.008665 को ऐड करके फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देता। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अलग हैं तो दो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये इतना पढ़ के देख लेना बाइंडिंग एनर्जी तक, फिर इसका एक ग्राफ आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ। तो अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद फिर थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी। ये बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इजी है, मतलब न्यूमेरिकल में कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसे मैथ्स ही है गंदा सा।